Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the scope and lifetime of the variables. So till now actually we have used only the data type about the variable, है ना. हमने अभी तक जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें वेरिएबल के लिए सिर्फ डेटा टाइप ही यूज किया है. बट besides the data type, variable also have a storage class. So what is actually mean by this storage class? So ये lecture में हमको वही देखना है कि what are the storage classes. So actually these are the storage classes or these are the types of variables according to the scope and the lifetime of variables. So first type of variable is automatic variable, or it is called as local variable, or it is also called as the internal variable. Okay, इस variable को नाम internal variable भी है. Then second type of variable is the external variable or the global variables. The third type of variables are the static variables, and the lastly fourth type of variable which is called as the register variable. So let us see these storage classes one by one now. So firstly we'll see about the automatic variables. Any variable which is declared inside the function in which it is utilized is called as the automatic variables. So actually अभी तक हमने सभी programs में सिर्फ इसी टाइप के वेरिएबल यूज किए हैं विच इज कॉल्ड एज द ऑटोमेटिक वेरिएबल, है ना. हम हमेशा मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे पहला जो सेक्शन हमारा रहता था दैट इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन. सो ऑल द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन, यानी कोई फंक्शन के अंदर आप जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो दैट आर कॉल्ड एज द ऑटोमेटिक वेरिएबल. ओके, एंड दे आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड. कब तैयार होते हैं वो वेरिएबल? जब फंक्शन कॉल होता है. And destroyed when the function is exited, and automatically that variable or the value of that variable, actually the memory space which is allocated for this variable will be destroyed as soon as the function is exited. यानी प्रोग्राम जो है वो इस फंक्शन के बाहर जब भी जाता है all the variables will be destroyed. ओके, सो अभी तक तो हमने मेन फंक्शन में ही यूज किया था. सो ऑफकोर्स इसके पहले हमने फंक्शन में भी, बाकी फंक्शंस में भी ऑटोमेटिक वेरिएबल यानी बाकी फंक्शन में भी अंदर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स. सो दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑटोमेटिक वेरिएबल. So a variable declared inside a function without a storage class specification is by default an automatic variable. Okay, यानी फंक्शन के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो विदाउट द स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन, यानी यहाँ पे मैंने इसके पहले डिक्लेरेशन के पहले डेटा टाइप के पहले कुछ भी स्टोरेज क्लास नहीं लिखा है, तो देन बाय डिफॉल्ट इट विल बी द ऑटोमेटिक वेरिएबल. ओके, या फिर आप उसके पहले स्टोरेज क्लास भी लिख सकते हो लाइक दिस, है ना. डिक्लेरेशन के पहले आपको लिखना है सिंपली ऑटो. सो दैट मीन्स दिस वेरिएबल इज ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेरिएबल. ओके, सो स्टोरेज क्लास आप स्पेसिफाई नहीं करते हो देन दैट विल बी द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स. ओके, ऑटो लिखना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लिखते हो तो इट विल बी ऑटोमेटिक वेरिएबल. ओके, सो लेट अस सी what is actually the scope of the variable and the lifetime of that variable. So consider the example here. So here in this example there are two functions. So firstly this is the main function and this is the second function which is suppose the display function. Okay, so in the main function two variables are declared, that is a and c. So that means this variables a and c are the automatic variables for the main function, and in the display function I have again declared the variable as a just like the main function. यानी main function में जो a variable है वैसा ही variable मैंने display में भी use किया है and it is allowed. ओके, सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन अलग अलग फंक्शन में. ओके, सो अब जैसे कि यहाँ पे मेन फंक्शन में a की वैल्यू कितनी है 4 और डिस्प्ले फंक्शन में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50.
So that means of course both the variable will be stored separately. Main function का a variable अलग होगा. So main function का a variable अलग होगा and display function का variable a अलग होगा. So this will be suppose a variable of display function and this is the suppose main variable of main function. ओके सो इस मेन फंक्शन में a की वैल्यू है 4 और डिस्प्ले फंक्शन में a की वैल्यू है 50. सो लेट अस सी द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल. सो एक्चुअली स्कोप का मतलब होता है कि a वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक आप यूज कर सकते हो. ओके जैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल आप कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हो. The scope of the automatic variable is only within the function in which it is declared. यानी जिस फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी फंक्शन में आप उसको यूज कर सकते हो. सो दैट मीन्स दिस a एंड c कैन ओनली बी यूज्ड इन दिस मेन फंक्शन. ओके a और c की वैल्यू आप यहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस के बीच में यूज कर सकते हो. एंड सिमिलरली इन द डिस्प्ले फंक्शन दिस capital A is the automatic variable, hence the scope of this capital A is within only the display function. Okay, display function के अंदर ही आप use कर सकते हो. And if here I am using the variable A, then value 50 will be accessed. Okay, ये वाला A ही use होने वाला है display function में, और अगर main function में capital A use होता है then it will be this A. Okay, so लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल है कैपिटल सी जो मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन में, और डिस्प्ले फंक्शन में मैंने लिखा है printf c. सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट विल जनरेट एन एरर. क्यों? क्योंकि डिस्प्ले ए सी का जो स्कोप है इट इज ओनली विद इन द मेन फंक्शन, यहीं पे आप उसको यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे अगर मैंने printf c बोल दिया देन ऑफ कोर्स कंपाइलर बोलेगा आई डोंट नो सी इज वेरिएबल सी, है ना. डिस्प्ले फंक्शन में सी क्या है उसको पता ही नहीं है. एंड द लाइफ टाइम ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, ऑटोमेटिक वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होंगे जब भी कंट्रोल उस फंक्शन के बाहर जाता है. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पे आपका डिस्प्ले फंक्शन क्लोज हो रहा है, जहां जब भी कंट्रोल यहाँ से बाहर जाएगा देन वेरिएबल्स ऑफ द वेरिएबल ए विल बी डिस्ट्रॉयड. ए की वैल्यू इसके बाहर जाने के बाद डिस्ट्रॉय होंगी. एंड सिमिलरली दिस वेरिएबल ए एंड सी विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर दिस मेन फंक्शन. यानी मेन फंक्शन खत्म होने के बाद में ये जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय होंगी. दैट मीन्स स्कोप ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज विद इन द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड and the lifetime of the automatic variable will be up to the end of the function in which it is declared. Okay, so this is all about the automatic variables. So let us see next type of variable which is called as the external variables. External variables are also called as the global variables. Okay, so जैसे कि इसका नाम बताता है these are the external variable. external means ये वेरिएबल फंक्शन के एक्सटर्नली डिक्लेयर होते हैं. ओके अभी तक हमने ये वेरिएबल यूज नहीं किए हैं. ओके जैसे कि मेन फंक्शन के हमने अभी तक अंदर ही डिक्लेयर किए हैं, बट यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर किया है. ओके सो दैट मीन्स दीज वेरिएबल्स आर एक्चुअली ग्लोबल टू द प्रोग्राम. यानी इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स उस प्रोग्राम में सभी फंक्शंस जो है वो सभी यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नम और हाइट दो ग्लोबल वेरिएबल है, बाद में आपका मेन फंक्शन है, और सपोज बाद में है आपका फंक्शन 1. देन बोथ दीज फंक्शन कैन यूज दीज वेरिएबल्स नम एंड हाइट. सो देयर विल बी सिंगल कॉपी ऑफ दिस नम एंड अ सिंगल कॉपी ऑफ हाइट which can be used by main function and the function 1 function. So therefore they are the global variable. global यानी जो सभी functions use कर सकते हैं, that are called as the global variables. Okay, and these variables are both alive and active throughout the entire program. यानी ये जो variables है ये variable की value जो है वो पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक आप यूज कर सकते हो. ओके जैसे कि लोकल वेरिएबल जो थे उन वेरिएबल की वैल्यू कब तक होती है, सिर्फ फंक्शन
खत्म होने तक ही। ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया तो वेरिएबल्स भी यहाँ के चले जाएंगे, लेकिन ये जो वेरिएबल है एक्सटर्नल वेरिएबल्स दैट विल बी लाइव थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक नम और हाइट की वैल्यू आप यूज कर सकते हो। Okay, so let us see the example now. So here variable x is the external variable or the global variable, and in this program I am having two functions. First one is the main function and second is the fun1 function. Okay, so let us see how this program will execute. Firstly, value of x is 10. So of course this x is a global variable. ओके, सो ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल ये फंक्शन में भी यूज हो सकता है और ये वाले फंक्शन में भी यूज हो सकता है। ओके, सो x नाम का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू है 10। प्रिंट एफ एक्स दैट मीन्स 10 विल बी डिस्प्लेड। इस फंक्शन ने उस 10 को इंक्रीमेंट कर दिया है ना, 11 हो गई x की वैल्यू। ओके, सो नाउ वैल्यू ऑफ x इज 11। देन fun1 फंक्शन कॉल हुआ है, यानी यहाँ से कंट्रोल आपका कहा जाएगा fun1 पे, और यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू एक्सेस की है ना। सो ऑफ कोर्स 11 वैल्यू कहाँ हुई थी आपके मेन फंक्शन में, बट सेम वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड हियर ऑल्सो, क्योंकि वही वेरिएबल है, यहाँ पे भी वही x है और इधर भी वही x है। सो अगर इसने वैल्यू चेंज कर दी है मेन फंक्शन ने, ऑफ कोर्स दैट वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल द फंक्शन। अब x की वैल्यू 11 हो गई है ना, तो fun1 फंक्शन में इस यहाँ पे आने के बाद क्या प्रिंट होगा आपका 11। ओके, क्लोजिंग ब्रेस यानी फिर से वापस जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो ही फंक्शन लिए हैं। जितने भी प्रोग्राम में, जितने भी एक प्रोग्राम में फंक्शन है उन सभी के लिए एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज द, एक ही वैल्यू होंगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, so this is the main difference between the external variable and the internal variable. Okay, या फिर local variable and the global variable. So let us see the internal and external variable practically. So here in this main method I have declared an internal variable x in the main function and the variables a and c in the display function. So as it is declared inside the function, these two variables are the local variable. X is local for the main function and a and c are the local for the display function. ओके, सो अब हम यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि x लोकल वेरिएबल है, मैंने x को उसी मेन फंक्शन में ही यूज किया है। ओके, एंड इन द डिस्प्ले फंक्शन आई हैव द वेरिएबल a and c and I have used only the variables a and c in the display function. Okay, so let us see what will be the output of program. So this is a very simple program actually, बहुत ही simple है। x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। ओके, फ्रॉम द मेन फंक्शन, and here from this display function will be called, control will be here, and then values of a and c will be displayed. Okay, a और c की वैल्यू जो है वो that values will be displayed here. Okay, so this is the very simple program. So see, consider suppose I print the value of x here. So मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट कर यानी की है। Okay, so let us run the program and see the output what it will generate. So of course it will give an error. Okay, so यहाँ पे वो error display करेगा। Why error? Because the value of x is not accessible here, है ना। x जो है वो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन में यूज हो सकते हैं। दैट मीन्स x कैन बी यूज ओनली विद इन द मेन फंक्शन एंड नॉट इन एनी अदर फंक्शन, और मैं x यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में यूज कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी स्कोप ऑफ द वेरिएबल x. सो दैट्स व्हाई देयर इज द एरर. ओके, सो नाउ so of course आप निकाल देते हो, then output will be displayed. Similarly these variables a and c cannot be used in the main function. Okay, अगर मैंने यहाँ पे a और c की जो वैल्यू है मैंने अगर यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है, then again it will give me the error because the variable a and c is not in the scope of the main function. ओके, मेन फंक्शन के स्कोप में नहीं है. दिस इज हाउ द इंटरनल वेरिएबल विल बी देयर. ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर कैन बी द सेम वेरिएबल. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे x दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और
होगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कुछ तो भी दे दी है, सपोज x इक्वल्स टू 20। ओके, सो दो भी यानी दोनों फंक्शन में सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट विल बी द डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे x की वैल्यू 20 है। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू डिस्प्ले करती हूँ, ओके, यहाँ पे x की वैल्यू डिस्प्ले करती हूँ, देन see here, firstly value of x is 10 and in this display function value of x is equals to 20. Okay, so this is about the local variable. So what is actually the global variable? Suppose I declare the variable here as s equals to 100. ओके, सो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसका मतलब s आप मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हो और डिस्प्ले फंक्शन में भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सपोज s इज इक्वल्स टू एंड आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ s। ओके, s की वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दी है। सपोज यहाँ पे हम s की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, s इज इक्वल्स टू सपोज s प्लस 10 एंड हियर suppose I print the value of s. Okay, so see, यहाँ पे s की वैल्यू s is the global variable, here I have printed the value of s, और यहाँ पे भी डिस्प्ले फंक्शन में भी मैंने क्या कर दी है, s की वैल्यू डिस्प्ले कर दी है एंड इट इज परमिसेबल बिकॉज s इज द ग्लोबल वेरिएबल। सो ऑफ कोर्स पहले s की वैल्यू कितनी डिस्प्ले होंगी, 100, एंड देन s विल बी इक्वल्स टू 110। इस स्टेटमेंट से 110 होगा, डिस्प्ले फंक्शन यानी यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे s की वैल्यू क्या डिस्प्ले होंगी आपकी, 110। ओके, सो लेट अस रन द प्रोग्राम। So see here, firstly x is equals to 10, which is the local variable of main function. Then s is equals to s की value, that is 100, which is the global variable. Then s becomes 110 and again display function will be called. So with this a and c values, that is 20, 34 is displayed, and then s is equals to value, that is 110 will be displayed. Okay, so this is how a global variable can be used all of the functions in the program. ओके, अब एक केस और भी हो सकती है कि अगर s नाम का ग्लोबल वेरिएबल भी है और s नाम का लोकल वेरिएबल भी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे s इज द ग्लोबल वेरिएबल और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर फिर से दूसरा s डिक्लेयर किया है, सो दैट मीन्स फॉर द डिस्प्ले फंक्शन हियर s इज द लोकल वेरिएबल। सो ऐसा अगर है, सेम नाम का ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल वेरिएबल भी है, देन प्रिसीजंस विल बी फॉर द लोकल वेरिएबल्स। ओके, यानी अगर डिस्प्ले फंक्शन में मैं s प्रिंट करती हूँ तो ऑफ कोर्स वैल्यू 10 विल बी रेफर्ड एंड नॉट विद दिस वैल्यू, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल को ही प्रिसीजंस जाता है, सो दैट मीन्स इन दिस डिस्प्ले फंक्शन वैल्यू ऑफ s, that is 10, will be displayed. So let us see the output now. So see here, x की वैल्यू 10, s की वैल्यू 100, यहाँ पे s की वैल्यू 110 हो गई, then display function is called and with this printf s 10 is displayed, s की वैल्यू 10 डिस्प्ले हुई है, not the 110. Okay, so this is also one of the case while using the local and the global variables. In the next lesson, we will see about the next two type of variables. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.